Hello dear students, myself Daisy ma'am. Today we are going to start the exercise part of chapter pollination and fertilization. So let's start with the first part, that is very short answer type question. So सबसे पहले हम देखेंगे question number 1 का A part. The condition in which anther and stigma of a flower, of a bisexual flower mature at the same time. Answer is homogamy. B. Fusion of one male gamete with the egg nucleus is known as fertilization. C. Pollination brought about by the agency of air is known as anemophily. D. A type of pollination in which pollen grains are transferred from the anthers of a flower to the stigma of a flower present on a separate plant is known as cross pollination. Second question, give one example for each of the following. Number 1, a wind pollinated flower, example is maize. B. An insect pollinated flower, example is bougainvillea. C. A water pollinated flower, example is vallisneria. D. A flower which is pollinated by elephant, answer is rafflesia. Next question number 3. Fill in the blanks with suitable words. Number 1. In self-pollination, the anther and stigma mature at the same time. B. In anemophily, there is much wastage of pollen. C. For cross-pollination, the flower must be showy and scented. तो यहाँ पे मैंने जो ये टर्म लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली पॉलिनेशन. ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट लिखना है, क्रॉस पॉलिनेशन. D. When anthers of the flower mature earlier than the stigma, it is called protandry. 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 This is T, right? This is E. Fruit is a mature ripened ovary. Fourth question. Complete the following statement by choosing the correct alternatives from those given within brackets. Number 1. Pollen grains of insect pollinated flowers are heavy, large, dry, spiny walled. The correct option is spiny walled. B. The condition unfavorable for cross pollination includes unisexuality, cleistogamy, heterostyly, hercogamy. Correct option is cleistogamy. Next is fifth one. Match the columns. Column A, column B. Number 1 is maize. Maize का example है pollination by wind. Maize के अंदर pollination wind के through होता है. Then B, endosperm. इसका answer है the triploid tissue. C, autogamy. Answer is self pollination. D, exine. Answer is outer coat of pollen. E, cleistogamy. Answer is commelina. F, entomophily. Answer is pollination by insect. Next, question number 6. True and false. Number 1. Fertilization is fusion of anther with the ovary. False. B. Generative nucleus in the pollen tube divides to form 2 male gametes. True. C. Pollen tube enters the ovule through micropyle. True. B part, short answer type questions. Question number 1. What happens to the following after fertilization? Fertilization के बाद ये जो आपको दिए हुए हैं, इनमें चेंजेस क्या होते हैं? तो A में देखेंगे ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है. एग सेल कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो में एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस चेंज हो जाता है एंडोस्पर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Differentiate between the following. Number 1, self-pollination and cross-pollination. ये आपको पेज नंबर 47 पे मिलेगा, टेबल नंबर 4.1. So this answer is given on page number 47. यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4.1 और इसे इसी तरह से आपको टेबुलर फॉर्म में ये दोनों डिफरेंसेस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का लिखना है. नेक्स्ट बी, सीड एंड फ्रूट. This is given on page number 52. पेज नंबर 52 पे आपको ये सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे फ्रूट की हेडिंग लिखी हुई है. यहाँ से इसको 2 पॉइंट्स में आप लिख लेंगे. एक तो फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा फ्रूट में भी डिफाइंड एज अ मैच्योर राइपेंड ओवरी. सेकेंड पॉइंट में आप लिख लेंगे इट इनक्लोजेस सीड्स टिल दे आर रेडी टू जर्मिनेट. ये आप
जिस तरह से टेबल होता है ना, टेबल फॉर्म में ही बनाएंगे। एक साइड में फ्रूट लिखेंगे, एक साइड में सीड लिखेंगे, 2 पॉइंट्स इसके आप लिख लेंगे फ्रूट के साइड में। देन इसी के जस्ट नीचे सीड वाला हेडिंग आपको मिलेगा, यू कैन सी हियर। इसमें भी आप इसको 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हैं या फिर एक ही पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट आप ये वाला लिख लेंगे, डेफिनेशन वाला। अ सीड कैन बी डिफाइंड एज फर्टिलाइज ओव्यूल दैट possesses an embryonic plant having plumule and radicle, stored food and protective coat। ये फर्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे। और सेकंड पॉइंट में आप ये ऊपर वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये लिख लेंगे सेकंड पॉइंट में, till here, right? Seed is the final outcome of sexual reproduction in flowering point। तो ये दो पॉइंट्स आप टेबल के फॉर्म में बनाकर लिख लेंगे इसमें। नेक्स्ट इज सी, एनिमोफिली एंड एंटोमोफिली। इसका आंसर मैंने जस्ट यहां नीचे लिख दिया है। हियर इट इज, एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली। देन नेक्स्ट, entomophily, pollination by insect is known as entomophily. Next, answer the following questions briefly. Number 1, mention 2 ways in flowers which favor cross pollination। तो स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन से ही। 2 ways in flowers which favor cross pollination are, और ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 46 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 लिखे हुए हैं लेकिन आपको 2 ही लिखना है। तो फर्स्ट आप देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी का। यूनिसेक्सुअलिटी में 2 लाइंस दिए हुए हैं और ये पूरे फुल 2 लाइंस आपको लिखने हैं। आई विल शो यू, सी, ये 2 लाइंस आपको पूरी लिखनी है। और सेकंड के लिए आप ये वाला लिखेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसके भी आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये तीनों पॉइंट्स आप इस आंसर के लिए लिखेंगे। नेक्स्ट, बी, लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 46 पे मिलेगा। इसको आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, सम एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर, और फिर आप पेज नंबर 46 पे इसके आगे का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 46 पे लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ का हेडिंग है, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसके आप लास्ट के 2 पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि अभी आपको लॉन्ग आंसर में भी इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो हम इनको हाफ ऑफ करके लिख रहे हैं। तो इसके जो लास्ट 2 पॉइंट्स है ये ही आप सिर्फ एडवांटेजेस में लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट, सी पार्ट, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपको पेज नंबर 47 पे मिलेगा। इसको भी आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर, देन यू विल मूव टू पेज नंबर 47। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि पेज नंबर 47 का 3rd पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स आप इसमें लिख लेंगे। Now C part, long answer type questions. Number 1, what is pollination? ये आपको पेज नंबर 53 पे मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट समरी का। देन नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, मेंशन इट्स टाइप्स। तो पॉलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, तो आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आपको क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों के ही 2 एडवांटेजेस भी लिखने हैं, जो आपको पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 पे मिलेंगे। तो मैं आपको इन दोनों पार्ट्स के आंसर दिखा दे रही हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 53 पे समरी का फर्स्ट पॉइंट, जहां आपसे पूछा गया था, पहला पार्ट क्या पूछा था, आपसे पूछा गया था डिफाइन पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन, व्हाट इज द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की जो आप फर्स्ट पॉइंट है, यही आपका डेफिनेशन में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ नाम लिखना है, दैट द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आपको दोनों के एडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो जो पेज नंबर 46 और 47 पे आपको मिल जाएगा। सो यू कैन सी हियर पेज नंबर 46 पे फर्स्ट 2 लिखेंगे, कि हम लास्ट 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं प्रीवियसली। तो फर्स्ट 2 एडवांटेज आप यहां से सेल्फ पॉलिनेशन के लिखेंगे, और नेक्स्ट पेज पे आप क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस लिखेंगे। इसमें भी आप फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वी आर नॉट डूइंग, क्योंकि यहां पे भी आपको एडवांटेजेस ही लिखने हैं, इसलिए हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को 2 बार लिख चुके हैं। तो वी आर नीड नॉट टू राइट दिस क्वेश्चन अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इवेंट्स लीड टू फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, तो इसको आप आंसर यहीं से लिखेंगे, इवेंट्स दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर आर, देन you'll मूव टू पेज नंबर 51. सो हियर इट इज, पॉइंट वाइज आपको लिखना है. पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, देन सेकेंड पॉइंट एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब in the embryo sac, then third point fusion of male and female gametes, that is fertilization. Then you will start writing from here double fertilization and triple fertilization. ये आपको 2 पॉइंट्स इसके नीचे लिखने हैं. उसके बाद ये 2 पैराग्राफ्स आपको लिखना है 10 से लेके डबल फर्टिलाइजेशन तक और द फ्यूजन से लेके नेक्स्ट पेज पर जब आप टर्न करेंगे पेज नंबर 52 तो यहाँ पे आपको ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म तक लिखना है. साथ ही साथ आपको फिगर्स भी इस क्वेश्चन के साथ ड्रॉ करने हैं. सो फिगर नंबर 4.8 स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये पूरा फिगर आपको बहुत अच्छे से जैसे इसमें बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आपको बहुत नीटली ड्रॉ करना है. देन नेक्स्ट फिगर नंबर 4.9 भी आपको ड्रॉ करना है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो ये पूरा आपको दोनों बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं कॉपी में. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ये आंसर आपको पेज नंबर 50 पे मिलेगा जो कि टेबल नंबर 4.2 है. सो यू कैन सी हियर टेबल नंबर 4.2 में आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं विंड पॉलिनेटेड और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में. तो ये पूरा टेबल आपको एज इट इज लिखना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, what are the advantages of the following in the flowers to the plant concerned. Number 1, bright and colored petals, इसके आगे आप डैश लगा के लिखेंगे to attract insects and birds. Then second, minute and light pollens, डैश लगा के लिखेंगे they can be easily carried away by wind. Then fragrance and nectar, पेज नंबर 48 पे इसका आंसर मिलेगा. तो यहां पे आप देखेंगे पेज नंबर 48 पे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स वाले में आपको थर्ड पॉइंट में ये आंसर मिलेगा. थर्ड पॉइंट के सेकंड पॉइंट में आप आएंगे, दैट इज यहां से आप स्मेल लिखेंगे इसको, स्वीट स्मेल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एज इन जैस्मीन, रोज एंड रैंगून क्रीपर्स. तो ये आपको सेंट और नेक्टर वाले में लिखना है आगे. D1, लॉन्ग एंड फेदरी स्टिग्मा, इसमें आप लिखेंगे हाइफन लगा के लिखेंगे टू हैंग आउट टू ट्रैप पॉलन फ्रॉम द एयर. राइट, सो दिस इज ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स. नाउ ओनली MCQ इज लेफ्ट. So let's start multiple choice questions. Number 1, exine and intine are the parts of pollen grains. हम लोग पढ़ चुके हैं कि exine outer layer का नाम होता है pollen grain का और intine inner layer का. Second is, which one of the following processes describe fertilization in flowering plants? Now the options are pollen grains landing on the stigma, pollen released from the anther, pollen tube growing down the style, pollen tube releasing a male nucleus to fuse with an egg nucleus. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ऑप्शन डिफाइन कर रहा है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को. राइट, देन third is, in a typical complete bisexual and hypogynous flower, the arrangement of floral whorls on the thalamus from the outermost to the innermost is A, calyx, corolla, androecium and gynoecium, B, calyx, corolla, gynoecium and androecium, C, gynoecium, androecium, corolla and calyx, D, androecium, gynoecium, corolla and calyx. The correct option is फर्स्ट वन, क्योंकि सबसे बाहर, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, आउटर से इनर पूछा है, नहीं बाहर से अंदर की तरफ वोल्स का पूछा है, कौन कौन से वोल्स होते हैं. तो सबसे बाहर कैलेक्स होता है, फिर उसके अंदर कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन सेंट्रली लोकेटेड गाइनोशियम. सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ इज, which one of the following is one of the characteristic of self-pollinated flowers? A, flowers are large and showy. B, flowers are scented. C, stigma and anthers mature at the same time. D, pollen is produced in very large quantity. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द सेम टाइम, तभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है.
Fifth one, in nature, clistogamous flowers are wind pollinated, bird pollinated, self pollinated, insect pollinated. अब क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्लोज्ड ही रहते हैं तो इसमें विंड पॉलिनेशन, बर्ड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, एज वेल एज आपको जो डायग्राम्स उन्हें बताए हैं वो डायग्राम्स आपको बनाने हैं, और सारे क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही नीटली लिखकर लर्न भी करना है। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, यू हैव टू लर्न ऑल द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।